बट जेंसी वो डाल रहे थे। या बट जेंसी जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है, हमने और आपने एक साथ एक चैनल में काम भी किया है, और जो जर्नलिज्म के बेसिक्स होते हैं कि कोई भी जो एक खबर आती है आप उसको पहले 10 लोगों से क्रॉस चेक करके और उसके बारे में तब आप हेडलाइन बनाते हैं और यू स्टार्ट डूइंग दैट स्टोरी। नाउ हियर यू हैव अ चैनल व्हिच माउंट्स एन एंटायर प्राइम टाइम डिस्कशन ऑन दिस। ये जो एक पैटर्न है ये क्या कहता है न्यूज के बारे में? बिकॉज यू आर इनटू फैक्ट चेकिंग, यू बीन an excellent journalist. What would you really say to what is really happening with news? Are we actually giving news to the people? Well, नीलू, यहाँ पर बात नैरेटिव वर्सेस न्यूज की बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, एज फार एज फैक्ट चेकिंग न्यूज रूम इज कंसर्न, हम ओपिनियन नहीं डालते हैं। मेरा ओपिनियन पॉलिटिकल इश्यूज पर जो भी रहेंगे, लेकिन मैं कभी उसे स्टोरी फॉर्म में या जो मेरे रीडर्स पढ़ना चाहते हैं उस फॉर्म में मैं उसे कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम यह है कि जो फैक्ट्स है उसको बाहर लाए, जो कोट्स है टू स्टिक टू द नेचर ऑफ द कोट्स, द वे इट इज वर्बेटिम, एंड नॉट टू गो बियॉन्ड दैट इंटरप्रेटिंग इट। जो न्यूज चैनल पर जो आजकल चल रहा है वो नैरेटिव जर्नलिज्म है। कहीं से भी एक कोट उठाइए, उसमें आप अपना मसाला लगाइए, एक नैरेटिव बिल्ड कीजिए उसके। अब यहाँ पर क्या नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सच अ टॉल लीडर, ही इज अ स्टेट्समैन एंड ही ट्राई टू इंटरवीन इन द यूक्रेन रशिया क्लैश। अगर नीलू, अगर आपको इसमें इफ यू वांट टू स्टडी इट, you should go and check the interviews, not what Asli Toye has said. That is very clear what he said. You please pay attention to the questions that the reporters are asking. And that is unfortunate, the way questioning is done today. The reporters were trying to lead Asli Toye to say that Narendra Modi is the front runner. These are words that were forcibly trying to be fitted into his mouth, and not that he ever wanted to say it. In fact, I saw many interviews where they are asking him leading questions. आप नोबेल पीस कमेटी के डेप्यूटी लीडर से मिल रहे हैं, आप कितने सारे बातों के बारे में बात कर सकते हैं उनसे? You can talk about Russia, Ukraine, what is happening, the kind of unrest that is there in the Middle East, the prevailing uncertainty that is around the world. So many things that you can talk about. But all the questions that you want to ask about is to actually project your the country's prime minister, and to kind of in some way build a narrative around the fact that he deserves a Nobel Peace Prize, so why don't you give it to him? Short of saying that they have done everything in that interview, it's the questions that are the problem. If you ask a foreign guest in the country, what do they think about the Prime Minister of the country? Please tell me, who is going to say that he doesn't think good about the Prime Minister? Why should he? I mean, he might be a genuine admirer of Prime Minister Narendra Modi. He will have good things to say. What is wrong about that? And that is what he did. He talked about Narendra Modi intervening in the Ukraine-Russia war. That is a matter of fact. We know that happened. He's Absolutely. talking about his interventions in some of the global arena. Now, these are things that are known publicly. What else can he say? But to actually turn that into a narrative of the fact that the Nobel Peace Prize Committee is backing Narendra Modi as the front runner, no, that is not journalism. That is clearly not journalism, and they need to be called out for this. अब अनिल सिन्हा के पास मैं आती हूँ। अनिल जी, क्या कहेंगे जो बात अभी जेंसी ने कही कि भाई जो इस तरीके से कोई भी अनाउंस नहीं करता है कि कौन फ्रंट रनर है, कौन दावेदार है, और जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो जेंसी ने कही कि आप सवाल क्या पूछते हैं। एक डेप्यूटी लीडर नोबेल पीस प्राइज कमेटी का आपके देश में है, आपके पास सवाल और भी हो सकते थे, लेकिन सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखते हुए दागे गए। आज क्या कहेंगे? क्या आज भारत के पत्रकारों ने ही अपने प्रधानमंत्री को शर्मसार कर दिया है? आज कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या मुंह लेकर दिखा सकते हैं? क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर बात हो रही है कि इंडिया हैज बिकम अ फेक न्यूज कैपिटल। इससे शर्मसार बात और क्या हो सकती है मोदी सरकार के लिए, उस ट्रोल आर्मी के लिए जो कि मोदी के इमेज को इतना एम्पलीफाई करती है? सर, क्या बोलेंगे आप? मुझको लग रहा है क्या कि आप ये मतलब गलत सोच रही हैं क्या कि शर्मसार होते हैं। ये जो है स्पॉन्सर्ड बाय देम है, उनके ही द्वारा है ये सारे पत्रकार और सारा मीडिया चैनल जो है उनके संरक्षण में चल रहा है, और दे वांट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव। मैं इससे असहमत हूँ कि इससे आप प्रधानमंत्री की बेइज्जती करवाते हैं या उनको उसकी इज्जत पर ये आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनके आर्मी, ट्रोल आर्मीज आर प्रोटेक्टेड एंड
ये स्पॉन्सर्ड बाय द बीजेपी, और वो सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के संरक्षण में हो रहा है। हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा है तो उसके संरक्षण में हो रहा है। इसीलिए आप इसको, मैं सिर्फ मतलब प्लीज मैं आपको ये आग्रह करूंगा कि आप ये मत सोचिए कि ये जो है इन्होंने अपने तय किया है।